سب سے پہلے بات کریں ایس آئی یو پولیس کے مبینہ تشدد سے بہاولپور کا نوجوان جاں بحق ہو گیا، جناح اسپتال میں عرفان کا پوسٹ مارٹم مکمل، تشدد کی تصدیق بھی ہو گئی، لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ حکام نے 3 ASI سمیت 7 اہلکار معطل کر دیے۔ اسامہ ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ قاتل بن گئے۔ کراچی میں SSU کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی جان چلی گئی۔ جاں بحق نوجوان عرفان کے اہل خانہ کے مطابق عرفان کو اس کے دیگر 3 دوستوں کے ہمراہ بدھ کی صبح عائشہ منزل سے حراست میں لیا گیا۔ جمعرات کو پولیس اہلکار عرفان کی لاش کو جناح اسپتال لائے۔ عرفان کے رشتہ دار کا کہنا تھا عرفان کا آبائی تعلق بھاولپور سے ہے اور وہ پہلی مرتبہ کراچی گھومنے پھرنے آیا تھا۔ پولیس نے مشکوک سمجھ کر حراست میں لیا اور مبینہ تشدد سے جان چلی گئی۔ بھائی ہم عائشہ منزل گئے، وہاں ناشتہ کر کے بھائی نے بولا ایک میری ویڈیو تو بنا دو، سیلفی تو بنا دو۔ ہم وہاں ایک سیلفی بنانے کے لیے خالی اترے ہیں، ابھی بنائی بھی نہیں تھی، تو اتنے میں 2 بندے آ گئے بائک پہ، کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہیں وہ۔ ہم نے کہا کوئی چور ڈاکو آ گئے ہمارے سے موبائل چھیننے کے لیے۔ اتنے میں موبائل آ گئی، ان کی 3-4 بائکیں اور آ گئی، کم سے کم یہ 12 سے 13 لوگ تھے جنہوں نے ہمیں پکڑا ہے آ کے۔ بھئی ہمارا قصور تو بتاؤ، بھئی آپ کا قصور یہ ہو آپ جو بندے زور ہیں ان کی جیبیں کاٹتے ہو اور ان کے موبائل چھین کے چلے جاتے ہو، آپ کا یہی کارنامہ ہے۔ پوسٹ مارٹم میں تشدد کی تصدیق ہو گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق نوجوان کے جسم پر متعدد چوٹوں کے نشانات پائے گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ SSP SIU نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ ابتدائی طور پر 3 ASI سمیت 7 اہلکار معطل کر دیے گئے۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ SIU اہلکاروں کی جانب سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ، متوفی کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد عیدی سینٹر سہراب گوٹ کے باہر موجود۔ لواحقین نے راشد منہاس روڈ پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ یہاں پر مجھے اٹھا کر مار دیا جائے گا۔ تو یہ جو ایک فضا قائم ہے سر سول ڈریس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ڈاکو ہیں، جو سول ڈریس میں ہے یہ بھی ڈاکو ہیں۔ تو انہوں نے ایک بچے کو اٹھایا، 4 بچوں کو اٹھا کر لے گئے، سارا دن گھماتے رہے۔ اس کے بعد ان کا کوئی سینٹر ہے، کوئی اپنا دفتر ہے، وہاں لے کر گئے اور بچوں کو تشدد کیا، جس سے ایک بچے کی ڈیتھ ہوگی، شہید ہو گیا۔ اس جو انلیگل ڈیٹینشن اور پھر ٹارچر، اس کے اوپر جو ہے بھرپور طریقے سے ہم اس کو لیں گے، ٹیک اپ کریں گے، اور انشاءاللہ کراچی بار ہو گئی، سندھ بار کونسل ہو گئی، ہائی کورٹ بار کونسل ہو گئی، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کراچی انتظامیہ نے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر ناقص اور غیر معیاری ملاوٹ شدہ دودھ کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ وسطی کورنگی اور ملیر کے ڈپٹی کمشنرز نے مجموعی طور پر 20 دکانیں سرب مہر کر دی، جبکہ سیل کردہ دکان بلا اجازت کھولنے پر 50,000 روپے جرمانہ عائد اور مالک کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ دکانیں ملاوٹ والا دودھ فروخت کر رہی تھیں۔ ضلع وسطی اور کرنگی میں 7 دکانیں سیل کی گئیں، جبکہ ضلع مریر میں 1 ہول سیلر سمیت 6 دکانیں سیل کی گئیں۔ دودھ کے نمونوں PSQCA لیبارٹری پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی میں چیک کیے گئے ہیں۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی نے کمشنر کراچی کو دودھ میں ملاوٹ کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی تھی۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ ناقص اور مضر صحت دودھ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت سولر پر منتقل کر دی گئی ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر اسٹریٹ لائٹس کو درست کو بھی سولر سسٹم منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہر کے تفریحی مقامات پر موجود لائٹوں کو سولر پر منتقل کریں گے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر کی تاریخی مارکیٹوں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردو بازار کی سولر سسٹم پر منتقلی کا کام آج سے شروع ہوگا۔ ایمپریس مارکیٹ، لی مارکیٹ، مچھی میانی مارکیٹ کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں دکانداروں کو سستی بجلی کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل، کراچی کی رونقوں کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ 1.5 برس بیت گیا، WTM 48 انچ قطر کی لائن کا رساؤ درست نہ کر سکا۔ نارتھ ناظم آباد یوسیات الفلاح بلاک B میں مین لائن لیک ہونے سے تباہی مچ گئی۔ یومیہ لاکھوں گیلن پانی سڑکوں سے بہتا ہوا نالے میں گرتا رہا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر کی بڑی واٹر لائنوں کی مرمت اور دیکھ بھال واٹر ٹرینک مین ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے،
लेकिन नॉर्थ नाज़िमाबाद, यूसी आर्ट, अल-फलाह में सूरत हाल इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुकी है। शेर शाह सूरी रोड से मुत्तसिल सर्विस रोड पर 48 इंच कतर की लाइन में 1.5 बरस से मुसलसल रसाव जारी है। रोजाना हजारों गैलन पानी जाया होकर सड़कों को खंडरात में बदल चुका है। शहरियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद महकमा सिर्फ वादों तक महदूद है। मरम्मत के अखराजात आवाम बर्दाश्त करने को तैयार है, मगर इदारा हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कराची को मुझे लग रहा है कि किसी हवाले से उन्होंने लावारिस छोड़ा हुआ है। इलाके मकीन इतने शदीद परेशान है, कारोबार लोगों के तबाह हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 1.5 साल से कई दफ़ा हम एक्सचेंज वाटर बोर्ड को भी बोल चुके हैं, उनको भी हम बार बार वीडियो बना के दे चुके हैं, उन्होंने आगे ये पहुँचाई भी है, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। वाटर बोर्ड की लाइन पीछे से कहाँ से लीकेज होती है, बहरहाल ये नर्सरी वाला क्या करता है, या पानी कहाँ से आ रहा होता, पानी डाल रहा होता बाकायदा। मुझे ये पता चला कोई अफगानी वगैरह हैं, बहरहाल वहाँ से पानी को छोड़ देते हैं डेली बेसिस पे, यहाँ से पानी पूरा वहाँ तक, बल्कि मेन रोड आगे देखें वहाँ तक जाता है, गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं। शहरी कहते हैं कि पानी सड़कों पर जमा रहता है, गाड़ियां फिसलती हैं और हादसात मामूल बन गए हैं। कई बार दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पिछले 1 साल से है और उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। ना कोई कस्टमर आ सकता है ना जा सकता है। लोग औरतों के साथ यहाँ पे स्लिप होती हैं बाइकें और गिरते हैं, बच्चे गिर रहे हैं। आगे गटर का ढकना खुला हुआ है, अपने पैसों से लगवाया है। 10 दफ़ा यहाँ पे मट्टी डलवाई है, इसको रोड को बनवाया है। वो रात पानी की लाइन लीक है, वो रात को पानी आता है। मीठा पानी घरों में नहीं आ रहा, बी ब्लॉक में रोड पे बह रहे पिछले 1 साल से। शहरी पानी के मुसलसल बहाव ने न सिर्फ सड़कों को तबाह कर दिया है, बल्कि दुकानदारों और राहगीरों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मॉडल कॉलोनी में सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। जिन्ना एवेन्यू से मलीर हॉल तक सड़क खस्ता हाली का शिकार, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। रहायशी कहते हैं 3 माह से सड़क तबाहाल है। सीवरेज की पाइपलाइन चौक होने से सड़क पर पानी भी जमा हो गया। इंतजामिया काम करने पर गफलत बरत रही है। आपको अपडेट करें हैं, मॉडल कॉलोनी में सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। जिन्ना एवेन्यू से मलीर हॉल तक सड़क खस्ता हाली का शिकार। रमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें, धूल मट्टी। मलीर मॉडल कॉलोनी की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। जिन्ना एवेन्यू से मलीर हॉल तक सड़क टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 माह से सड़क तबाहाल है। गहरे गड्ढे और सीवरेज की पाइपलाइन चौक होने से सड़क पर गंदा पानी जमा हो गया है। धूल मट्टी के बाइस आमदोरफ्त में मुश्किलात और हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। ये तो इसी के लिए, क्योंकि सीवरेज लाइन टूटी हुई है, डैमेज है, कोई यहाँ आता ही नहीं है, तो इसी के लिए तो फिर ये 3 महीने से ये टूटी हुई है। ये 1-2 दफा बोला था वहाँ पे बंदे ने, तो उन्होंने बोला करवाएंगे, नहीं करवाई अभी तक। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत के बाइस सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। इंतजामिया नजर नहीं आती। बात यह है कि तकरीबन जिस दिन से बारिश हुई है उस दिन से ये बुरा हाल हुआ है। उससे पहले तोड़ फोड़ थी, 2 दफा यहाँ पर ट्रक गिर चुके हैं अंदर। मकीनों ने सूबाई हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदों और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि सड़क की हालत को बेहतर किया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध सेक्रेटेरिएट नॉन गजटेड मुलाजमीन की तंजीम सेनवा की 9 मुंतखब काबीना का हल्फ ले लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अहदेदारों से हल्फ लिया और कहा कि मुलाजमीन छोटे नहीं होते, इन्हीं मुलाजमीन के दम से हुकूमतें चलती हैं। आज़ाद नौहरियों की रिपोर्ट देखिए। सेनवा की 9 मुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने अहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, मुलाजमीन कोई छोटे बड़े नहीं होते, उन मुलाजमीन के दम से हुकूमतें चलती हैं। तकरीब के मौके पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी इनेकाद किया गया, जिसमें आकाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अकीदत में गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए गए। तकरीब से सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली बुरहमानी और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद अली खोसो ने भी खिताब किया। इस मौके पर मेहमानों को सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक भी पहनाई गई। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ आज़ाद नोहलियो, सिटी 21। शहर से वॉल चॉकिंग के खात्मे के लिए मेयर कराची ने नौजवानों से मदद मांग ली। मेयर कराची ने वॉल चॉकिंग का खात्मा करने की वीडियो ट्वीट कर दी। बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाव कहते हैं कि नौजवान अगर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने में साथ देंगे तो खुशी होगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाव ने कहा कि नौजवान इस शहर को बल्दिया उस्मा कराची के साथ मिलकर खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाएं। नौजवान ही इस मुल्क का असल असासा हैं। कराची की रोशनियाँ बहाल करने के लिए नौजवान हमारा साथ दें।
डी जी नादरा सिंध आमिर अली खान की मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात हुई, जिसमें शहरियों की सहूलत के लिए नादरा सेंटर्स की तादाद बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों फरीकैन में मुस्तकबिल में बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। मेयर कराची ने शहरियों को जदीद और तेज तर सहूलियात फराहम करने के लिए नादरा की कारकर्दगी को सराहा है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहरियों की सहूलियात की फराहमी के लिए बल्दिया उस्मा कराची नादरा से हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कराची की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि डीजी नादरा सिंध आमिर अली खान की मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात हुई है, जिसमें शहरियों की सहूलियात के लिए नादरा सेंटर्स की तादाद बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों फरीकैन में मुस्तकबिल में बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। जिना अस्पताल को खुद मुख्तार बनाने या NGOs के हवाले करने की खबरें बेबुनियाद। जो NGO सपोर्ट कर रही है उसका ये मतलब नहीं कि वो अस्पताल की हकदार बन जाएं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फैसल पेचोहो की अफवाहों की मजम्मत। उनका कहना है कि जिना अस्पताल हमने वफाक से लीज पर लिया है, जबकि हमने चिल्ड्रन अस्पताल के पैसे रिलीज कर दिए हैं, वो खुद नहीं चला रहे। जिना अस्पताल को खुद मुख्तार बनाने या NGOs के हवाले करने की खबरें बेबुनियाद निकली। जो NGO सपोर्ट कर रही है उसका ये मतलब नहीं कि वो अस्पताल की हकदार बन गई। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो की अफवाहों की मजम्मत। उनका कहना है कि जिना अस्पताल हमने वफाक से लीज पर लिया है, जबकि हमने चिल्ड्रन अस्पताल के पैसे रिलीज कर दिए हैं, वो खुद नहीं चला रहे। अब आपको बताएं, सिंध की सकाफत, तारीख और अवामी जिद्दोजहद को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गईं। सीनियर वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा इत्तलात ने 4 फिल्मी मनसूबे मुकम्मल कर लिए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के खुसूसी शिरकत के साथ इजलास में फिल्मों के मवाद, असरात और अवामी पैगाम पर मुशावरत हुई। इजलास में फिल्मों की मार्केटिंग, नुमाइश और अवामी रसाई से मुतालिक अहम फैसले किए गए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत फिल्म साजी को सकाफत के फ़रोग़ का मौसर जरिया समझती है। ये मनसूबे सूबे के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करेंगे और नौजवान फिल्म साजों को नए मौक़े फराहम करेंगे। उनका कहना था कि सिंध का सकाफती वर्सा आलमी सतह पर मुतारिफ कराने का आज़म रखते हैं। मुकम्मल फिल्मी मंसूबे जल्द अवाम के सामने पेश किए जाएंगे। अब खबर शामिल करें जराइम के हवाले से, तो आपको बताएं गुलशन हदीद बुध बाजार ग्राउंड के सामने डकैती की वारदात। मुलजिमान सवार शहरी से 15.5 लाख नकदी छीन कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV सिटी 21 ने हासिल कर ली। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजिमान असलहे के जोर पर शहरी से नकदी छीन कर बाआसानी फरार हो गए। सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत हुई और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री मनसूखी केस। जामिया कराची और वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। कलअदम तंजीम ज़ेबून ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुलजिमान अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इसरार हुसैन गिलगिती और मासूम रजा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पुराने वाजिबात की वसूली की इजाज़त देने का मामला। MKM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने नेपरा की SRO के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को 11 नवंबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। अवाब अलवी और आफ्ताब जहांगीरी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा के खिलाफ इम्तना मंशियात का मुकदमा। गवाहान की गैर हाजिरी पर शर्की की अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने इस्तिगासा के गवाहान की नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। लापता अफराद केस। अदालत ने मेमार से लापता शहरी की दरख्वास्त मिसिंग पर्सन कमीशन को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। गुलिस्तान जोहर से लापता शहरी तहा की बाजियाबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत ने अल्फला से लापता शहरी जमील बहराम का मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी जीत के लिए पुरुमीद। सिटी कोर्ट में उम्मीदवार सिंध बार काउंसिल नासिर अहमद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया।
देखते हैं मुमताज जमानी की ये रिपोर्ट। सिंध बार कौंसिल के इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया। उम्मीदवारों ने जीत के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुख्तलिफ अजला में वकला की हिमायत हासिल करने के लिए मुलाकातों, नाश्ते, ज़ोहरानों और इशाइयों का सिलसिला जारी है। सिटी कोर्ट में फ्रेंड्स ऑफ नासिर अहमद की जानिब से तकरीब, जिसमें वकला के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया, जहाँ अंडा, छोले, दाल, हलवा और नान से मेहमानों की तवाज़ो की गई। एडवोकेट नासिर अहमद कहते हैं कि नौजवान वकला की माली मदद, वकला की यूटिलिटी बिल्स में टैक्स से इस्तिस्ना समेत दीगर उमूर पर काम करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये जो गैस, बिजली, पानी और मोबाइल के जो बिल होते हैं, ये वकीलों को बहुत भारी पड़ते हैं, क्योंकि वकीलों की कोई फिक्स आमदनी नहीं होती। अब इस सिलसिले में हमारी ये कोशिश होगी कि हम वकला को टैक्स से एग्जेम्प्ट करा दें, ताकि इन बिलों में जो हैवी टैक्सेस लग के आते हैं वो कम हो जाएं, ताकि उनके बिलों में कोई कमी वाक़ई हो जाए। वकला ने कहा कि ऐसे वकील को वोट करना है जो प्रैक्टिसिंग और वकला के मसाइल से वाकिफ़ हो। तारीख बदल देंगे सिंध बार काउंसिल की। हमारे दिल में जो जज्बात हैं वकला साहिबान के लिए, इंशाअल्लाह 2025 से 30 का जो टर्नर ईयर है, इसके अंदर आप देखेंगे कि वकीलों की फलाह व बहबूद के लिए नासिर भाई क्या काम करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है। आज हमने फ्रेंड्स ऑफ नासिर अहमद की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद किया है, एक नाश्ते का। ये गेट टुगेदर का बहाना है। इलेक्शन में बहुत ही चंद कम दिन रह गए हैं, तो ये एक हमारी तरफ से इनके ऑनर में, इनके एजाज़ में एक तकरीब है। सिंध बार कौंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को होंगे। कराची में 101 उम्मीदवार मैदान में हैं, उतरेंगे, जबकि शहर के तमाम अजला से सिंध बार कौंसिल की 16 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 1286 पॉइंट्स कमी से 1,63,304 पॉइंट्स पर बंद। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों ने मुनाफा समेटने को तरजीह दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 1286 पॉइंट्स कमी से 1,63,304 पॉइंट्स पर बंद। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों ने मुनाफा समेटने को तरजीह दी। सोने की कीमत में मजीद कमी, 1 तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता होकर 4,31,862 रुपये तक गिर गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से सोने के सौदों में फरोख्त का रुझान है, जिस पर आलमी मार्केट में सोना $20 सस्ता होकर $4,095 फी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता होकर 4,31,862 रुपये पर आ गया। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी के साहबजादे की दावत वलीमा में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली, सूबाई वज़ीर सईद गनी, मंजूर वसान, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, गवर्नर KPK मोहम्मद सादिक सुंजरानी दावत वलीमा में मौजूद। साबिक वफाकी वज़ीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, अब्दुल कुद्दूस बजिंचो, अली हसन जरदारी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के साहबजादे समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। दावत वलीमा में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी के साहबजादे की दावत वलीमा। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी के साहबजादे की दावत वलीमा।